ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਐਂਡ ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਇਨਸਾਈਟਸ ਵਿਦ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਖਬਰਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨੂੰ ਇੰਪੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਵਿਸ਼ਾਲ ਸੂਦ ਜੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਵੈਲਕਮ ਸਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਅਮਨ। ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਆਏ ਦਿਨ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਸਟੈਪ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਨੂੰ ਅਪੁਆਇੰਟ ਕਰਤਾ ਕਿ ਉਹ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ। ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਂ ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਦੇਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ। ਦੇਖੋ, ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾਰਮਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਾ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਲੱਗ ਤੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੈਪਸ ਲੈਣੇ ਹੀ ਪੈਂਦੇ ਨੇ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਹਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਪਲਾਨ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਪਾਰਟ ਫਰੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਵਧਾਈ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਦੋ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਵਾਈਜ਼, ਲੈਟਸ ਸੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਉਹ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ। ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਿਟੀ ਵਾਈਜ਼ ਜੀ, ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਕੀ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕ੍ਰਾਸ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏਗੀ ਤੇ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਟੈਪ ਵਰਥ ਟਰਾਈਂਗ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖੋ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖੋ ਕਿ ਲੈਟ ਸਪੋਜ਼ ਕਿ ਜੇ ਇੱਕ ਮਿਨਿਸਟਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਲੰਧਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਇਫ ਯੂ ਆਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਫॉर योर ओन ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਫਿਰ ਸਰਟਨ ਕਨਫਲਿਕਟ ਆਫ ਇੰਟਰਸਟ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਸਰਟਨ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਦੇ ਹੈਵ ਗਿਵਨ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਟੂ ਡਿਫਰੈਂਟ ਮਿਨਿਸਟਰਸ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜੇ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਜੇ ਇੱਥੇ ਫੋਕਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੇਖੋ, ਹੁਣ ਹਰ ਮਿਨਿਸਟਰ ਕੋਲ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਤੇ ਇੱਕ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 92 ਐਮਐਲਏਸ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਕੁਝ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਕਿ 2-2 3-3 ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਏਰੀਆਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਕਨਸਟੀਚੁਐਂਸੀਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਇਟਸ ਅ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਜੀ। ਬਟ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਕੋਈ ਵੀ ਸਟੈਪ ਇਨ ਦੀ ਰਾਈਟ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਸ਼ਨ ਤੇ, ਹਾਊ ਵੈਲ ਇਟ ਇਜ਼ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਡ, ਕਿੰਨੀ ਸਿੰਸੈਰਿਟੀ ਨਾਲ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਚੈੱਕਲਿਸਟ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਉਹਦੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਇਹ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹਦਾ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ, ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਕੱਲ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਵੇਖੋ ਕੁਝ ਜੋ ਇੰਪਲੀਕੇਸ਼ਨਸ ਆਉਣ ਦੀ ਜੋ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੇ, ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਛੇਤੀ, ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਓ ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਬਿਊਰੋਕ੍ਰੇਸੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਐਸਚਨ ਰੇਜ਼ ਕਰੇਗੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਜਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕਿ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਆਫੀਸਰਸ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਇਹ ਇੱਕ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਕਨਫਲਿਕਟ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੇਗਾ ਕਿ ਹਾਊ ਕੈਨ ਅ ਮਿਨਿਸਟਰ ਫਰਮ ਅ ਡਿਫਰੈਂਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ, ਲੈਟਸ ਸੇ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੇ ਦੂਜਾ ਮਿਨਿਸਟਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਐਸਐਸਪੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਪਿਆ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਡੀਆਈਜੀ ਆਈਜੀ ਨੇ ਵੀ ਪੁੱਛਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਕਾਈਂਡ ਆਫ ਇੱਕ ਉਹ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਮਾਸਟਰਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੀ। ਐਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਰਾਈਟ ਕਿਹਦਾ, ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇੰਸਟਰਕਟ ਕਰਨ ਦਾ ਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲ ਕੀ ਰਾਈਟ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਕੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਕੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ, ਕਿ ਸਿਰਫ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਕਿ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਚੁੱਕਣਾ ਜੀ, ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਟਰਵੈਂਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਲੈਟਸ ਸੇ ਇਫ ਦੇ ਆਰ ਇਨ ਚਾਰਜ ਆਫ ਅ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ, so can they override the decision of a deputy commissioner? So these are the details that have to be seen, that what kind of steps have been taken ਤੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿੰਨੀ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਹੋਏਗੀ ਜੀ। ਦੇਖੋ, ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਅਲਟੀਮੇਟ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਵੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੋ ਸਲੋ ਹੋ ਜਾਏ, ਤੇ ਜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਕੇ, ਸਾਰੇ ਸਿਨੈਰੀਓ ਨੂੰ ਕੰਸੀਡਰ ਕਰਕੇ ਜੇ ਚੀਜ਼ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰਿਜ਼ਲਟ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਈ ਐਮ ਹੋਪਿੰਗ that it will be managed more professionally, right, ਇੱਕ ਫਾਰਵਰਡ ਥਿੰਕਿੰਗ ਨਾਲ, ਟੌਪ ਮੈਨੇਜਰੀਅਲ ਸਕਿੱਲਸ ਨਾਲ ਸਟ੍ਰੈਟੇਜਿਕਲੀ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਨੇਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਖਿਚੜੀ ਪੱਕ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ 'ਚ ਡਰ ਵੀ ਬੈਠੇਗਾ? ਮੈਂ ਉਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਪਿਆ, ਡਰ ਬੈਠੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇਗਾ ਇਹ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਹੈ ਜੀ। ਕੀ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਸਕੇਪ ਰੂਟ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਦੇ ਦੇਗਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਹ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਹੇਗਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਰਾਈਟ। ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਡਾਊਨ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ, ਬਟ ਇੱਕ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਇਨੀਸ਼ੀਅਲੀ ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਮੈਨੇਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਦੇ ਸਟੈਪਸ ਕਿੰਨੀ ਡਿਟੇਲ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਉੱਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਕਰਦਾ। ਸਰ, ਜੇਲ੍ਹ ਮੰਤਰੀ ਬੈਂਸ ਕਾਫੀ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆਏ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲੋਕ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਤਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਹੈ, ਤੇ 40% ਲੋਕ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਿਲੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ। ਦੇਖੋ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਹਾਈ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਹੈ, ਰਾਈਟ। ਜੇ 40% ਲੋਕੀ ਨਸ਼ੇ ਦੇ ਆਦੀ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ ਹਜੇ ਵੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਮਹਾਉ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਸ਼ਾ ਅਵੇਲੇਬਲ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆਇਆ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਨਸ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਨਸ਼ਾ ਸਪਲਾਈ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜੇ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਬੇਖੌਫ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਇਟਸ ਅ ਗੁੱਡ ਸਟੈਪ। ਇਹ ਐਟਲੀਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਬਈ 45% ਲੋਕ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਹੀ ਸਟਿਲ ਟੇਕਿੰਗ ਇਟ ਆਊਟ ਓਪਨਲੀ। ਉਹ ਬੈਕਫੁੱਟ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿ ਬਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਜੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੁਕੋਲਾਂ। he is trying to bring it out positively, he's taking a bold step, he is admitting it। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਕੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇੰਨੇ ਸਟਰੋਂਗ ਸਟੈਪ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ ਤੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 1 ਕੁਆਟਰ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦੁਬਾਰਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਰਵੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਆ 45% ਤੋਂ 40% ਤੋਂ 20% ਤੇ ਆਂਦਾ, 15% ਤੇ ਆਂਦਾ, ਆਈਡੀਅਲੀ ਤੇ 0 ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਟ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹਾਊ ਇਟ ਗੋਸ ਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸੈਂਪਲ ਟੈਸਟਿੰਗ ਕਰਨਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਯੰਗ ਸਾਡੇ ਜੇਲ੍ਹ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਸਟੈਪ ਹੈ। ਤੇ ਆਈ ਹੋਪ ਹੀ ਇਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਉਮੀਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜਾਗੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਆਪਣੀ ਇਮੇਜ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਹੀ ਇਜ਼ ਕਮ ਐਜ਼ ਅ ਫਾਇਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਗਰੈਸਿਵ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੂ ਕਾਲ ਸਪੇਡ ਅ ਸਪੇਡ। ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਟੇਕ ਔਨ ਕਰਨ ਤੋਂ ਘਬਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਨੇ ਤੇ ਹੀ ਆਰਟੀਕੂਲੇਟਸ ਹਿਸ ਥਾਟਸ ਵੈਰੀ ਵੈਲ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਲੈਟਸ ਸੀ ਹੀ ਹੈਜ਼ ਐਡਮਿਟਡ ਇਟ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਟ ਅੱਜ ਤੋਂ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ। ਦੈਟ ਇਜ਼ ਆਲਸੋ ਦੈਟ ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਸੀਨ। ਸਰ ਜੇ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹਾਲ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰ ਪਬਲਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਹੋਏਗੀ ਨਸ਼ੇ ਦੀ? ਨਹੀਂ, ਬਾਹਰ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਿ ਸਾਰੇ ਸਮਗਲਰ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਰਪਟ ਆਫੀਸਰਸ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਇਜ਼ ਕੁਆਇਟ ਕਾਮਨ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਬਟ ਯੂਸੇਜ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਵਾਈਜ਼ ਜੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਕਿ ਜਿਵੇਂ 45% ਐਡਿਕਟ ਨੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜਸ ਫੋਰਚੂਨੇਟਲੀ ਸਾਡੀ ਸਟੇਟ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀਆਂ। ਪਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਐਕਸਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਜੇ ਇੱਥੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਸਮਹਾਉ ਡਰਗ ਮਾਫੀਆ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਪਕੜ ਹੈ, ਕਿੰਨੀ ਸਟਰੈਂਥ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਡਰਗ ਸਾਡਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇੱਕ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਸ਼ਾ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣਾਂ ਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ISI ਨੂੰ ਜਾਂਦਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ, ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ। ਤੇ ਨਸ਼ਾ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਤੇ ਸੈਂਟਰਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਟੌਪ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਰ, ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਵੀ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਅਗਰੈਸਿਵ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਵੱਡੀਆਂ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਇੱਕ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਇੱਕ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ 'ਚ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਹੀ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਈ ਹੋਪ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ। ਐਂਡ ਦੇਖੋ ਕੰਸਾਈਨਮੈਂਟਸ ਅੱਗੇ ਵੀ ਫੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੈਟਸ ਹੋਪ ਇਟ ਹੈਪਨਸ ਲਾਈਕ ਦੈਟ। ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਘਿਓ ਸ਼ੱਕਰ ਕਿ ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕਾਲਾ ਸਾਇਆ ਹੈਗਾ ਹਟੇ ਇੱਥੋਂ, ਰਾਈਟ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਯੂਥ ਹੈਲਦੀ ਹੋਵੇ, ਵਧੀਆ ਆਦਤਾਂ 'ਚ ਪਵੇ। दैट इज ऑल वी कैन विश फॉर। सर, भारत में अब वाइस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए जगदीप धनखड़ जी का नाम आया है। ये जगदीप धनखड़ जी NDA के कैंडिडेट हैं। NCP और ओपोजिशन पार्टीज ने मिलकर मार्गरेट एल्वा को दे हैव नॉमिनेटेड एज देयर वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट। देखो जो नंबर्स हैं, जो स्ट्रेंथ है इस वक्त ऑफ इलेक्टोरेट जो वोट करेंगे वाइस प्रेसिडेंट के लिए, NDA के कैंडिडेट के चांसेस ऑलमोस्ट 100% है जी। और अगेन बीजेपी ने बड़ा सोच समझ के डिसीजन लिया है। अगर आप जानते होंगे धनखड़ जी ही वाज द गवर्नर ऑफ वेस्ट बंगाल और उनके काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट चलते रहे ममता बनर्जी के साथ, राइट। सो ही हैज़ बीन इन लाइमलाइट बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज ही अपोज लॉट ऑफ डिसीजंस विच ही थॉट वर नॉट इन द इंटरेस्ट ऑफ पीपल। और उन्होंने बड़ा वेहेमेंटली उन चीज़ों को अपोज किया। और एज अ वाइस प्रेसिडेंट ही हैज़ बीन अ लॉयर। उनका काफ़ी 1989 से पॉलिटिकल करियर है और ही कम्स फ्रॉम द जाट बैकग्राउंड। और मेरे को ये लगता है कि मैं हालांकि इन लॉट ऑफ एनालिसिस इज शोन कि अगर आप जाट या किसी ट्राइबल कम्युनिटी से लेते हैं नेता तो समहाउ आपकी वहाँ पे स्ट्रेंथ बनती है, राइट। मेरे को ये लगता है कि कोई भी कैंडिडेट हु इज बेस्ट फिट फॉर दैट, हु डिजर्व्स दैट रोल, उन्हीं को नॉमिनेट करना चाहिए। और मैं पर्सनली ये मानता हूँ कि अब इस बात का असर, क्योंकि अब पब्लिक भी समझ गई है कि जस्ट बिकॉज आप हमारे करोड़ों लोगों में से एक कैंडिडेट को एक नॉमिनेशन या एक अच्छी पोजीशन दे देते हैं, दैट डज नॉट मीन यू आर आवर वेल विशर्स। अगर लोग काफी पिछले इलेक्शन में भी 2019 के इलेक्शन की भी अगर मैं बात करूं और यूपी इलेक्शन की अगर मैं बात करूं, सबने बोला था कि जाट कॉन्स्टिट्यूएंसी से बीजेपी को वोट नहीं आएगी क्योंकि वो उनसे नाराज हैं बिकॉज ऑफ फार्म लॉस। और हुआ ये कि एंड में उन्होंने और सीटें गेन की जी।
तो एट द एंड ऑफ द डे जनता भी ये देख रही है कि मेरे लिए कौन सी सरकार अच्छी है, मेरे लिए कौन से नए इनिशिएटिव लेके आएगी। मेरे में से एक बंदे को अगर उन्होंने नेता चुन लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि वो मेरे वेलविशर है। इस तरह की जो टोकनिज्म है कि भाई हम आपके कुछ रिप्रेजेंटेटिव ले रहे हैं, एक दो फैमिलीज को फायदा करवा रहे हैं और बाकी उससे अब हर कम्युनिटी को ऊपर उठना पड़ेगा जी। चाहे वो मुस्लिम कम्युनिटी हो, चाहे वो कोई भी कम्युनिटी हो, उनको ये उठना पड़ेगा कि हमें ये नहीं चाहिए कि भाई हमारे कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन दे दी जाए और बाकी सब लोगों को प्रोग्रेस से दूर रखा जाए जी। आज प्रोग्रेस सबको मिलनी चाहिए इक्वालिटी से, सबकी ग्रोथ होनी चाहिए। जो सरकार ये करे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करे रिसोर्सेस को, सबको मौका दे आगे बढ़ने का और बिना कोई भेदभाव के कि अगर किसी भी वर्ग के लोगों को ऊपर उठाने की जरूरत है तो सबको सपोर्ट करे जी। धर्म के आधार पर सपोर्ट ना करे तो मेरे को लगता है कि वही सरकारें आगे फ्यूचर में भारत में आएंगी। जी बिल्कुल सर, भारत ने एक और अच्छा काम किया, कोविड वैक्सीन है, 2 बिलियन का आंकड़ा पार कर दिया सर, 200 करोड़ का। देखो, सैल्यूट टू आवर साइंटिस्ट, टू आवर हेल्थ वर्कर्स, टू आवर ब्यूरोक्रेट्स एंड टू आवर गवर्नमेंट। ये एक अनप्रेसिडेंट अचीवमेंट है, हम लोग इसकी इंपॉर्टेंस नहीं समझ रहे। चाइना की इकोनॉमी पिछले क्वार्टर 2.5% कॉन्ट्रैक्ट की है और सिंपल रीजन है वो वैक्सीनेशन ड्राइव नहीं कर पा रहे। एक अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट जिनके कहने पे सब कुछ हो सकता है, देखिए वैक्सीनेशन की ड्राइव वो भी कंप्लीट नहीं कर पाई। इट वाज सच अ कॉम्प्लेक्स टास्क और हमारी गवर्नमेंट ने वो करके दिखाया है। हम एक अकेले डेवलपिंग कंट्री हैं जहां के अंदर से 2-3 नई तरह की वैक्सीनेशंस डेवलप हुई हैं। आज बच्चों की भी वैक्सीनेशन हो रही है, बूस्टर डोज भी फ्री कर दी गई है जिससे उसका भी अपटेक बढ़ गया है। और मेरे को लगता है कि आज अगर हमारी इकोनॉमी ऑन ट्रैक है, जो ग्लोबल फोर्सेस हैं, हम अभी उसका प्रेशर, लोग कह रहे हैं जी हमारी करेंसी डेप्रिशिएट हो गई है जी, 7% डेप्रिशिएट हुई है इस साल, विच इज अ सिग्निफिकेंट नंबर। पर आप कंपेयर करो बाकी करेंसी से, सब 15% 20% डेप्रिशिएट हुई हैं। यूरो की करेंसी ले लो आप डॉलर के मुकाबले, जब से यूरो बना है पहली बार डॉलर से वो नीचे चला है, पहली बार। सो यू कैन इमेजिन द काइंड ऑफ इम्पैक्ट दिस वॉर इज हैविंग। और वैक्सीनेशन ने जो हमारे को चलाए रखा है, हमारी इकोनॉमी को एक्टिव रखा है, वो हमारी एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ बन के आई है। सो मेरे को लगता है कि इट शुड बी काउंटेड एज वन ऑफ द मेजर अचीवमेंट्स इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया। हम जब उस टाइम में जी रहे होते हैं ना, हम उस चीज का सिग्निफिकेंस नहीं समझते जी। जब हिस्ट्री लिखी जाती है, जब हम बैकड्रॉप में देखते हैं, तब हमें पता चलता है कि हमारे साइंटिस्ट ने, हमारे डॉक्टर्स ने, हमारे सिविल सर्वेंट्स ने, हमारे पॉलिटिशियन, इस बार की गवर्नमेंट ने, जहां पे क्रेडिट ड्यू है देना पड़ेगा, उन्होंने हमारे लिए क्या किया है, इस इकोनॉमी को दोबारा उभारा है और ये स्ट्रेंथ दी है। एंड वी शुड ऑल बी थैंकफुल टू दैट। एंड आवर साइंटिस्ट, इसीलिए हमें अपना साइंटिफिक टेम्परामेंट, रिसर्च में अपने प्रोसेसेस में भरोसा रखना चाहिए और इस चीज में और इन्वेस्टमेंट्स करनी चाहिए। सर, पाकिस्तान में जो पिछले कुछ समय में हुआ, इमरान खान को पीएम की कुर्सी से उतारा गया, शहबाज शरीफ जो कुर्सी पे दोबारा विराजमान हुए और इस बार फिर इलेक्शन हुए हैं तो इमरान खान आगे दिख रहे हैं। देखो, ये उनकी पंजाब प्रोविंशियल असेंबली के बाईपोल्स हैं जी। 20 सीटों पे बाईपोल्स हुए थे। उसमें ऐसी उम्मीद लगाई जा रही है कि 16 सीटों पे इमरान खान की इंसाफ तहरीक पार्टी फिर से जीतेगी जी। और मोर और लेस ये एक्सेप्ट कर लिया गया है बाय दी पीपल इन पावर। नवाब शरीफ की जो पार्टी है, उन्होंने दे हैव एक्सेप्टेड देयर डिफीट कि वो 3 से 4 सीटें जीतेंगे जी। अब चैलेंज ये है कि आप देखो, इसको 2-3 तरीके से देखने की बात है। ये विक्ट्री इमरान खान को और हौसला बढ़ाएगी और पाकिस्तान को और डिस्टेबलाइज करेगी। इससे 2 चीजें होंगी। आर्मी ने इन इलेक्शंस में इमरान खान की पार्टी को ऑफ कोर्स वोटिंग हुई है और उनके फेवर में वोटिंग हुई है, इसलिए जीतने दिया है। इससे जो रूलिंग पार्टी है, जब उनकी स्ट्रेंथ वीक होती है, वो आर्मी के ऊपर और डिपेंडेंट हो जाती है, आर्मी की पावर और बढ़ती है। दूसरी बात यह है कि अगर इस तरह की डिस्टेबलाइजेशन बढ़ती रही और वहां पे अनरेस्ट हुआ, वहां पे ऑलरेडी इकोनॉमिक सिचुएशन कोई अच्छी नहीं है जी। और श्रीलंका जैसी सिचुएशन पाकिस्तान में भी बनती जा रही है और पाकिस्तान में ये सिचुएशन बनना श्रीलंका से बहुत डेंजरस है, क्योंकि श्रीलंका में तो काइंड ऑफ लोगों के पास उस तरह की वेपनाइजेशन नहीं है, उस तरह के टेररिस्ट ग्रुप नहीं है जो पाकिस्तान इस वक्त सफर कर रहा है जी। वहां पे ज्यादातर लोग हथियार रखते हैं, राइट। ट्राइबल एरियाज में ऑलरेडी रूल ऑफ लॉ नहीं है। वहां पे अगर इस तरह के प्रोटेस्ट हुए तो लोग बंदूकें लेके सड़कों पे उतरेंगे जी। बहुत ज्यादा कत्लेआम होगा। और ये एक और एग्जाम्पल बनने जा रहा है कि चाइना
के डेथ ट्रैप में आने के बाद या चाइना के चंगुल में आने के बाद आपके देश की क्या हालत होती है जी। और इमरान खान को इस वक्त बिल्कुल परवाह नहीं है कि देश में अनरेस्ट बढ़ रहा है, इनसिक्योरिटी बढ़ रही है, वो प्रोटेस्ट पे प्रोटेस्ट और लोगों को वो काफी भड़का रहे हैं जी। इससे पूरे देश को मैनेज करना मुश्किल होता जा रहा है। और ऑलरेडी पाकिस्तान के अंदर कई इलाके और कई ऐसे ग्रुप्स हैं जो सरकारों से खुश नहीं है, जिनके साथ ट्रेडिशनली पाकिस्तानी सरकारों ने जो पाकिस्तान का पंजाब है वहां की डोमिनेटेड जो कम्युनिटी ने रूल किया है, उन्होंने उनके साथ नाइंसाफी की है जी। तो ये एक बहुत ही खतरनाक मिक्सचर बनता जा रहा है जो पाकिस्तान में डिस्टेबिलिटी इज डेंजरस फॉर इंडिया ऑल्सो। और मेरे को ये एक चीज है जिसके ऊपर इस वक्त जो भी वहां के रूलर्स हैं, इंटरनेशनल बॉडीज हैं, उनको ध्यान रखना पड़ेगा, अदरवाइज बहुत ही डेंजरस सिचुएशन पूरे साउथ ईस्ट एशिया के लिए क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी इज द हब ऑफ क्रिएशन, इज एन एक्सपोर्टर ऑफ टेररिस्ट एक्टिविटीज। वो कोई अच्छी चीज तो बना नहीं पाते हैं, एक्सपोर्ट नहीं कर पाते हैं, वो ऐसी नेगेटिव चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो ये एक बहुत डेंजरस सिचुएशन वहां पे बनती जाती है। ये बाई इलेक्शन हालांकि इमरान खान की पार्टी के लिए अच्छे रिजल्ट्स हैं, पर ये पाकिस्तान की डिस्टेबिलिटी की टुवर्ड्स एक स्टेप लिया गया है। तालिबान को भी मौका मिल रहा है सर पाकिस्तान में घुसने का? तालिबान ऑलरेडी पाकिस्तान में है। उनके जो नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस हैं जिसमें ऑलरेडी गवर्नमेंट की इंटरवेंशन और कम होती जा रही है, दे आर बीइंग रूल्ड बाय ट्राइबल वारलॉर्ड्स जी, राइट। और तालिबान के अलग अलग ग्रुप अक्रॉस, चाहे आप उनके टॉप शहर ले लो, वहां पे बॉम्बिंग चाहे वो अलग अलग मस्जिदों में हो, अलग अलग एरियाज में हो, वो करते आए जी। तालिबान ने तो कुछ साल पुरानी बात है, बहुत ही दुखद घटना है, एक आर्मी के बच्चों के स्कूल में अटैक कर दिया था जी। तो इस तरह के माइंडसेट वाले ग्रुप जिनको उन्होंने खुद ही इनकरेज किया, जो हम बात कर रहे थे उस दिन भी कि पाकिस्तान आज उन्हीं ग्रुप्स का सबसे बड़ा विक्टिम भी बन गया। जी सर, इसके साथ ही इसका प्रभाव भारत पे क्या आ सकता है और भारत को क्या क्या करना चाहिए? देखो, भारत को तो सबसे पहले अपने बॉर्डर को नॉन पोरस बनाना पड़ेगा। ऑलरेडी गवर्नमेंट लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ, एक स्ट्रॉन्ग रिजॉल्व के साथ ऑलरेडी इंश्योर कर रही है कि वहां से जो लोग यहाँ पे आ रहे हैं, जो मर्सनरीज भेजे जा रहे हैं, उनको इमीडिएटली न्यूट्रलाइज किया जाता है, राइट। गवर्नमेंट ने ये अपने इरादे शो कर दिए कि अगर यहाँ पे अटैक होंगे तो हम वहां पे घुस के अटैक करेंगे। और इस डिस्टेबलाइजेशन में सबसे पहले तो इंडिया को ये देखना पड़ेगा कि जो इंडियन असेट्स अफगानिस्तान में है, राइट, और जो हमारे ट्रबल्ड एरियाज हैं उससे पाकिस्तान का ध्यान हटाया जाए। इंडिया को प्रोएक्टिव स्टेप्स लेने पड़ेंगे इस डायरेक्शन में। सेकेंडली एंड लास्टली जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस को कॉन्टिन्यूस मॉनिटरिंग करनी पड़ेगी कि क्या वो जो कौन कौन से ऐसे ग्रुप हैं जिनका इंडिया फोकस्ड है, ऑलरेडी है, किन, और खास तौर पे जो डेंजरस वेपन्स हैं, राइट, विच आर वेरी रिस्की वेपन्स। अगर पूरा कंट्री डिस्टेबलाइज हो जाता है जिस तरह से श्रीलंका में हुआ है, तो ऐसा ना हो कल को न्यूक्लियर वेपन्स, डर्टी बॉम्ब्स किसी ऐसे टेररिस्ट ग्रुप के हाथ ना आ जाएं और वो इंडिया में उसका यूटिलाइज ना कर दें। तो ये मेरे को लगता है कुछ चीजें जो इंडिया को बहुत केयरफुली देखनी पड़ेगी। सर, एक और बुरी खबर आ रही है, साउथ वेस्ट से आग लगी है जंगलों में और स्पेन और ग्रीस तक भी पहुंच चुकी है। बेसिकली यूरोप इज अंडर एक रिकॉर्ड हीट वेव के अंडर है जी। और देखिए, क्लाइमेट चेंज को हमारे पॉलिटिशियंस और हम लोग भी एक तरह से एक फ्यूचर की चीज मान रहे हैं, या अभी एक कहानी की तरह मान रहे हैं, पर इट इज बिकम अ रियलिटी। आज देखिए, फ्लडिंग, जो आते हैं, तूफान आते हैं, उनकी फ्रीक्वेंसी, उनकी पावर बढ़ती जा रही है, हीट वेव्स की फ्रीक्वेंसी बढ़ती जा रही है। 1884 से टेम्परेचर लेना ऑफिशियली मॉनिटर करना शुरू किया गया था। जो टॉप 10 टाइम्स हाईएस्ट टेम्परेचर आया वो 2002 के बाद आया यूरोप में जी, हाईएस्ट एवरेज टेम्परेचर। जंगलों में आग लग रही है, वहां के जंगल इस तरह से नहीं बिल्ड हैं कि इस टेम्परेचर को सह पाए जी। वहां पे ड्राइनेस आ जाती है और जंगलों में आग लग जाती है। अब ये एक साइकिल शुरू हो जाता है। इस बार हजारों एकड़ के जंगल जल गए, अगली बार और टेम्परेचर बढ़ेगा क्योंकि वो ठंडा रखने में काम करते थे जी, और ये साइकिल बढ़ता जाएगा। मेरे को लगता है कि अब इंसानों को समझ जाना चाहिए कि धरती इंसानों के बिना चल जाएगी, पर इंसान धरती के बिना नहीं चलेंगे। बिल्कुल, शुक्रिया सर। इस तरह की जरूरी जानकारी के लिए और करंट अफेयर्स के लिए देखते रहिए इनसाइट्स विद विशाल सूद।